Am I audible? Yes, sir. Hello. Are you able to hear me? Yes, sir, you are audible. Thank you. Because a couple of times it has been an issue, so I just wanted to make doubly sure that things are okay. So good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. So here we are, continuing from where we left last week. Last week we had a session wherein थोड़ी a सी lot of आवाज us. कम लग रही है I'm sorry. थोड़ी सी आवाज कम लग रही है सर कम लग रही है. हाँ अब ठीक है. कुछ असर हुआ? Sir, it's perfect, sir. Good to you. All right. Otherwise, I'll probably use the earplug and then connect me, but that will be only for me to listen to. Because anyway, whatever I'm speaking is going from my laptop. So I guess it's reasonably okay. So yeah, we are continuing from where we left. Last time, हमारे संग करीब at least 5-6 people were there who could we didn't have time for them to talk about, and I'm not sure if those people are around here today. But nonetheless, हम आगे बढ़ेंगे इस सिलसिले में. The topic. So once again, good evening to all. Welcome to this Guftagu session. This is a pure chit-chatting session. गपशप करेंगे, एक दूसरे की दास्तान सुनाएंगे, लर्न करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे. We'll get to learn a few things from people around and their experiences. This is what we have been doing in Guftagu. So to give it some kind of a shape and structure, we have been always having some topic and we can talk in and around. इसके इर्द गिर्द हम लोग बात कर सकते हैं. So last time we were talking about achievements, individual achievements, be it in school, at the school level or college level, study level, professional level, retired level, कहीं पे भी, anywhere, anyone could have achieved something. And if something unique you have achieved, which is something worth sharing, that will be wonderful for us to listen to. I mean, my job here is to uh, be the host and enable each one of you to speak up. And we won't be I'll be failing in my duties if I don't talk about seniors today who have given us this platform, so that all of us with kind of similar stage and age of life can express and relate to a whole lot of things. तो हो सकता है कि आपका तजुर्बा दूसरों के लिए काम आ जाए. So this is exactly what we are trying to do. And yes, lovely to know that Rajendra Shah ji has already raised his hand. So आपको एक option है, if you look at the buttons, at least on my screen it is available. There is something called reactions. वो reactions पे आप दबा के hand raise कर लीजिए, so that एक के बाद एक हम बात कर सकेंगे, आप बात सुन सकेंगे. So we would appreciate others remaining silent and listening to the person who is talking. And उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग. So अभी two of them have already raised their hands. One is Rajendra Shah ji, बाद में Rajkumar ji. This is how we will go. Rest of the people also can wait and listen to what the experiences are and then decide to raise your hands. If you are not raising your hand, I will go ahead and then pick the person who will speak. So it will be good if you can yourselves do it. Some of them, like people who are present here, like Saroj ji was there last week, Suresh ji was there last week. So, but there will be more for them to also speak. Lot of experiences, lot of episodes of real time lifestyle. So we can all talk about that. So let me request Rajendra Shah ji to go ahead and share about his achievements or what are his family's achievements. सब कुछ चल जाएगा. Thank you so much, Rajendra ji. Okay, sir. Good evening to all. नमस्कार. Good evening, sir. सर ऐसा है कि मैं अभिमान नहीं करता हूँ. मीन्स एक साल का जब था तब से पोलियो का पेशेंट पोलियो हुआ था और मोर देन 80% डिसेबिलिटी थी. तो फैमिली में
सबसे मेरे 5 बड़े भाई थे, तो उनके सपोर्ट से एक अच्छा फैमिली के कारण क्या कि पढ़ने में थोड़ा अच्छा रहा, तो पढ़ा, अच्छा पढ़ा। आई एम एबल टू गेट ग्रेजुएशन, बीकॉम, एलएलबी, डीएलपी किया, फिर फेलोशिप किया है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट का, जो बेस्ट लास्ट एग्जाम होता है, फेलो ऑफ द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो किया। तो क्या कि एक पहले से एक ऐसा था कि कुछ हम जानता था कि भाई ऐसे ऐसी पोजीशन है, तो अपने पैर पे खड़े रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। बस बचपन से बस वही पढ़ने में ध्यान दिया और एलआईसी में जॉब किया पूरा। और एलआईसी में आके भी एक ऐसा होता है कि चैलेंजिंग होता है कि भाई हमको हमको कोई मर्सी दिखाए ऐसा हमारे मन में नहीं होना चाहिए, हमको कोई करेक्ट। दया का भाव नहीं बताना चाहिए। और इसीलिए हमको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, मीन्स जो नॉर्मल काम करता है उससे ज्यादा काम करेंगे तभी हम कुछ कुछ हमको, वरना लोग क्या करते हैं कि ठीक है चलो दया भाव रखते हैं, थोड़ा कम एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं, अपने को पूरा 100% देना है। और उनकी बदौलत ही नॉर्मल के साथ कॉम्पीट करके प्रमोशन भी लिया। और जैसे क्योंकि डिसेबिलिटी थी तो एक बार पोस्टिंग 12वीं हुआ, 12वीं में अप डाउन करता था, डबोई जा रहा था, बड़ौदा से 30 किलोमीटर दूर, बस में जाता था, बस में था, मैं कैलीपर पहनता था, दो दो पैर का मेरा कैलीपर होता था। हाँ तो हाँ। दो पैर में जो आप कैलीपर्स आते हैं पूरे, क्योंकि मेरा दोनों पैर में पोलियो था, तो वो हिसाब से जो भी किया वो सेटिस्फाइड है सर। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ किया है, लेकिन जो भी किया है अपना स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिली थी जो वो स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से जो भी किया, प्रमोशन भी लिया, अच्छी तरह से एलआईसी में पूरा जॉब किया। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ बर्डन बने, अपनी संस्था के लिए बर्डन नहीं बने। ऐसा नहीं है कि भाई चलो भाई हैंडीकैप है तो ऐसा रिजर्वेशन में जॉब मिल गया और ऐसा है, ऐसा नहीं। वो बहुत फुल किया। इसके अलावा शादी भी किया, इसके अलावा बहुत कुछ एक्टिविटी में भी किया, भाग लिया, जैसे स्पोर्ट्स में हमने, हमारी दिव्यांग की स्पोर्ट्स होती है, इसमें भी अचीव किया, स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड भी लिया। सिंगिंग में कुछ ज़्यादा, सिंगिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो सिंगिंग में स्टेज शो भी दिए, परफॉर्म भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और ये सीनियर सिटीजन का जो ये प्लेटफॉर्म मिला है हमको सीनियर्स का, बहुत इसका बढ़िया। इट्स अ रियली ग्रेट, क्योंकि ये एक पर्पस बताता है आफ्टर रिटायरमेंट। वो तो भगवान की कृपा है कि रिटायरमेंट के बाद ऐसा मेरे को, ऐसे क्या बोलते हैं, सिंगिंग अपना सीनियर टैलेंट में पार्ट देने के बाद ऐसा मालूम पड़ा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ इतने सब लोग इतने अच्छे, और ये लोग जो काम कर रहे हैं सीनियर्स वाले, और दे हैव गिवन द पर्पस टू लिव, दे हैव गिवन द पर्पस टू लिव। ट्रू। आज की बात करूं कि आज दोपहर का जो सेशन था बुक्स के बारे में, इट वाज हाँ। अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग और रियली। और जो भी है बहुत वर्थवाइल है। ये जो फिरोज भाई जो टेक प्लस वाला जो करते हैं, जो टेक्नो अपने को सिखाते हैं, ये सर ये। और व्हाट इज द मेन थिंग कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अस, दैट इज द मेन थिंग। दे आर नॉट चार्जिंग एनी मनी, दैट इज द मेन थिंग। मेरे को कोई कोई बार सरप्राइज होता है कि हाउ दे आर रनिंग दिस विदाउट चार्जिंग एनीथिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दिस आर द थिंग्स। अभी भी है, लेकिन सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है, सेटिस्फाइड है। जो भी भगवान ने अपनी लायकात के हिसाब से ज्यादा दिया है, आई एम हैप्पी विद दिस। एंड अच्छा, एक लड़की भी है, फैमिली भी है, अच्छा है, इट्स ओके। दिस इज द थिंग विच आई एम मैंने जो एक्सप्रेस किया आपको, दूसरा कुछ तो बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन जितना किया है आई एम सेटिस्फाइड ड्यू टू माई एज पर माई लिमिटेशंस। जो भी है वो मैंने किया है। थैंक्स, नो थैंक्स सर, थैंक। नो, राजेंद्र जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि मैंने अपाहिज होने की वजह से कोई फायदा नहीं उठाया। आपने यस यस, अपने दैट इज द मेन। बलबूते पर जो भी किया, कमाया जो भी किया, यस आपने यस अपने यस बलबूते पे किया। ये बड़ी, यस आई मीन वी हैव टू गिव, काबिल तारीफ है ये बात। यस यस यस, So, थैंक यू। so that is such, and the best part is that कि you should not feel handicapped at all. यस यस आप सब नॉर्मल है वैसे, यस फ्रॉम यस यस। ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर देखेंगे। हमारा एकदम अंतरंग मित्र है यहाँ पे, मोहन कृष्णन ऑल्सो। उनको हाँ, देख के कौन बोलेगा वो भी पोलियो के शिकार हैं। अच्छा अच्छा। बट देखो आप, वो आरबीआई में इतने बड़े ऑफिसर बने, सब कुछ हुआ। सो एंड उनको कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। दैट इज नहीं, एग्जैक्टली बस बस। व्हाट आई वांट। राजेंद्र जी को भी कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने काम अपने पूरा शक्ति में अर्न किया है। सो हैट्स ऑफ टू यू। सो दिस इज समथिंग विच विल हमको बहुत खुशी देती है कि आप जैसे लोग जो हैं, यू आर
truly inspiring for many of us, कि थैंक यू। ये तो कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, थोड़ा कंपटीशन भी होता है, तो लोग सोचेंगे कि अरे मैं मेरा तो सब कुछ ठीक ठाक है, मैं कुछ नहीं किया यार, ऐसे भी लग सकता है, कॉम्प्लेक्स आ सकता है, बट यस यस। ट्रिगर दैट पर्सन टू परफॉर्म समथिंग और कुछ ये भी आ सकता है कि सीखने के लिए तो बहुत है इसमें। Really, hats off to you, Ravinder Shahji. I'm थैंक यू सर। very pleased, and I'm sure you will go places, be it sports, be it music, be it any other activity जो आप social activities भी कर रहे हैं. So सब यस। में आप माहिर हैं and आप अव्वल हैं. अलहमदुलिल्लाह. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स सर, Thank you so much. थैंक Uh, यू सर। now we'll move to Rajkumar ji. Go ahead, sir. Unmute yourself. And करिए. नमस्कार सबको, और सबको नए साल की शुभकामनाएं। जो ये नया साल आ रहा है, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? बिल्कुल, बहुत सही सही ढंग से पहुंच रही है. अच्छा, ठीक है। और ये मैं गुफ्तगू में पहली बार अपने आप को इंक्लूड किया हूँ। और ये सीनियर हैव टैलेंट से मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, अच्छा. और उसके बाद से ये सारी मेरी शुरुआत हुई है। और आज मैं सबसे रूबरू हूँ। बेसिकली मैं लखनऊ का हूँ, और मैं अब दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा. बच्चे, मेरी 2 लड़कियां हैं तो दिल्ली में रह रही है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया हूँ। और यहाँ आके मुझे 2-3 चीजें जो मिली हैं, वो यही मिली हैं कि लाइफ जो है बहुत कुछ सिखाती है। आई एम 70+, लेकिन जो अभी मेरी जिंदगी के साथ हादसा हुआ था और जिससे मैं निकल के आया हूँ, वाह. अच्छा. वो मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे वो एक्सपीरियंस मिला था हाँ. कि ये कोविड के समय में 11 नवंबर 20 को पहली लहर आई थी कोविड की, और मैं उसमें घिरा, क्योंकि मैं अस्थमा का पेशेंट था। थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम थी, तो जिसके कारण कोविड ने मेरे को सीधा लंग्स पे ही असर किया पहले लहर में। पहले हालांकि बहुत छोटी थी लहर थी, लेकिन उसमें हुआ करीब 1.5-2 महीना मैं पहली लहर और दूसरी लहर में फंसा रहा। ओह. और डेली मेरे सामने 2-2 लाशें निकलती थी। गॉड. आप सोचिए, मैं 6 महीना, 6 मंथ ऑन ऑक्सीजन। बहुत कम लोग थे जो सरवाइव कर पाए, और उनमें से मैं हूँ, खुश नसीब हूँ जो मैं अपने आज मैं आपके सामने हूँ। अदरवाइज मेरी जो लंग्स थी, जैसे हम लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं 2 लीटर पर मिनट पर सेकंड के हिसाब से ले रहे हैं, 2 लीटर। ओके. और मेरा लेवल पहुंच गया था 16 तक। ओह. ओके. यानी हाँ, बहुत ही उम्मीद, क्योंकि नॉर्मल सिलेंडर जो घर में होते हैं वो तो काम ही नहीं कर रहे थे। 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पर सेकंड, आई डोंट नो एग्जैक्ट। या हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ा मुझे ओके. स्टार्टिंग से ही। लखनऊ में. और वो, हाँ, 20 से लेके 21 तक, 1 मई 21 को जाके मेरी ऑक्सीजन हटी है। माय गॉड. ओके. यानी ये 2 हॉस्पिटल ने तो जवाब दे दिया था, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य था। मैं डॉक्टर से कहता, मुझे कुछ भी करो, मुझे जिंदा खड़ा करना है। मैं नहीं जानता, इंजेक्शन ठोको, कुछ भी करो, मुझे जिंदा रहना है। ओके. और ये चीज उन्होंने कहा, अगर वाकई में तुम जिंदा रहना चाहते हो। हालांकि मेरे पैसा लग गया काफी कुछ, पुलिस वालों ने इंजेक्शन लगाया, मेरी बॉडी नीली पड़नी शुरू हो गई। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये नीली पड़नी शुरू हो रही 2:30 बजे रात को, इसमें एंटीडोज जो अभी आपने दिया है उसको एंटीडोज बनाइए। यानी मैं इंस्ट्रक्शन देता था जिंदा रहने के लिए, मेरी इतना था। काफी कुछ सीख यानी लिया आपने. विल पावर स्ट्रांग रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं सबको एक ही बात कहूंगा, किसी हाँ. भी मुसीबत से न घबरा के विल पावर स्ट्रांग रखिए, तो सब कुछ हो सकता है, मौत से भी बाहर आ सकता है। और उस चीज का मैं एक राज जो है, डॉक्टर ने जो मेरे को बताया था उसमें रहने के लिए, कि हाँ. आपको सरवाइव करना है। आपकी मेडिसिन जो होती हैं, ये क्या ना, कोविड की, इतनी हाँ. स्ट्रांग होती हैं, जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उसके लिए, जिंदा रहने के लिए। उसने कहा कि आपको खाना खाना है। खाना मुझसे खाया नहीं जाता था, ओके. क्योंकि पूरे मुंह में छाले पड़े हुए थे। कहता है, तकिए में आप रजाई रुई ठूंसते हैं ना, उसी तरह
आप मुंह में रोटी को ठूंसिए तभी आप जिंदा रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। ओह, एवरी मेडिसिन वांट्स फूड। लोग क्या करते हैं बुखार में, इसमें बाकी मेडिसिन लेते रहते हैं, छोड़ देते हैं खाना। गलत है। डॉक्टर बोलते हैं गलत है। उस मेडिसिन को डिसॉल्व करने के लिए, उसको ब्लड में सर्कुलेट करने के लिए हमें फूड चाहिए। तो ये एक रामबाण है सबके लिए। मैं कहूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस जिंदगी का, कि आपको मेडिसिन जब लेते हो तो खाना जरूर खाएं। ये एक मेरे को अपनी जिंदगी का मिला एक, कि इस कंडीशन पे खाना जो, तो वाकई मैंने उसको ठूसा है, रोता रहा, लेकिन एंड उसके बाद लीवर डैमेज हो गया 4th स्टेज। फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली से लेके लिवर हॉस्पिटल जो है सबसे इंडिया का टॉप मोस्ट, वहां हाँ। दिखाया उन्होंने। अब मुझे 2nd स्टेज पे हूँ, और 2nd स्टेज पे रह के अभी मैंने सिंगिंग का शुरू किया है। तो मैं अरे, आज आपके सामने, सबके सामने हूँ। तो बहुत ये अच्छा। मेरा एक जिंदगी का एक्सपीरियंस रहा। और विल पावर स्ट्रांग रखना है, सबको कहना पॉजिटिव सोचना है और कुछ नहीं। मैं ये अभी जो इन 2 सालों में एक ही चीज सीखा हूँ, एंड लिव फॉर योर। पहले खुद अगर आप जिंदा रहोगे तब किसी के लिए कुछ कर पाओगे। सही बात है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बाकी तो अ, इस 70 साल में बहुत से और भी है, लेकिन वो कभी फिर मैं मिलूंगा, क्योंकि सब लोग हैं ऐसे मैं कहने के लिए। और 2 लाइन जरा गाने की हाँ, मैं गाना चाहता हूँ, 2 लाइन। प्लीज 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 गो अहेड। कौन सा गा दूं? हाँ, मेरा फेवरेट एक्चुअल में हेमंत कुमारी है। अच्छा। तो उस समय भी मैंने एक ही ये गाया था, अगर याद हो। बेकरार करके हम यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हम यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। इस गाने से शुरुआत की थी मैंने सीनियर सिटीजन में, और फाइनल तक पहुंचा हूं मैं। फाइनल में कुछ मेरे से प्रॉब्लम हो गई थी, फिर अगर थोड़ा सांस की प्रॉब्लम रहती है मेरे को, ओके। इनहेलर लेता हूँ। लेकिन गाने का शौक जरूर है मेरे को, जरूर और गाना करेंगे। मेरे को बहुत सपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया जी, आप थैंक यू कंटिन्यू। वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया लगा आपकी बात सुन के। जो ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन आपने, आपका मकसद जो था जिंदगी में, मुझे जीना है, आप जी रहे हैं। क्योंकि आपको जीना था। भाई बोलते हैं ना, हम पहले अपने को, खुद को प्यार करो ताकि तुम औरों को प्यार कर सकते हो। सो ये जैसे इसी ऐसी बात है जो आपने किया है। रियली इट्स समथिंग यूनिक। आपने जो मौत के मुंह से आप बाहर आए हैं वैसे। इट्स बाहर नॉट आया हूँ सच इजी। में, मतलब है तो मैं आज एक चीज और कहूंगा। मैं सुबह उठ के, जब मैं उठता हूँ बाहर निकलूंगा, सूर्य देव को मैं क्योंकि बहुत मानता हूँ थोड़ा, उनको पहले जरूर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज एक नई जिंदगी फिर दी है, रोशनी क्या देखने के बात लिए। है। इसके वाह, लिए शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो ये सोच ये आप सरनी सर, हम सराहेंगे। ये जो आपका जो सोच है, इट इज समथिंग वर्थ एमुलेटिंग। सबको पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा चिंता नहीं करना है। चिंता करने से प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व हो जाता है, वो भी तो है। सॉल्यूशन में जी। फोकस करना है ज़्यादातर। तो और आपने अच्छा, इसमें थैंक यू वेरी मच। बस एक को कहूंगा, क्या इसमें कोई थीम रहती है या हम कुछ भी बात कर सकते हैं? नहीं नहीं, टॉपिक रहती है। अभी अचीवमेंट्स की टॉपिक है। इस हफ्ते के लास्ट वीक हमने यही टॉपिक रखा था। ऐसा था कि करीब 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 2 घंटे हो गए थे, और 4-5 जन को बात करने का अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, उनको मौका नहीं मिला। अच्छा हमने वही पार्ट 2 कंटिन्यू किया है। सो अच्छा अच्छा। हाँ, सो अदरवाइज एक नया कोई ना कोई टॉपिक रहता ही है। कुछ दिन पहले एग्जाम्स के बारे में था, फिर बारे में वेकेशन के बारे में था। लॉजिकली हम लोग वो सीजनल जो भी है वो भी करते हैं। पर कभी कभी एकदम थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स भी रखा हुआ है हमने। अच्छा इंटरेक्शन होता है लोगों का। Thank you, थैंक यू Rashmi. सर, थैंक You are also amazing, and you also inspire us for that. Any next one who would like to speak also? ज्ञान शुक्ला भी बात करेंगे। उसके पहले I would like to remind people कि नीचे reaction button है, उसमें हाथ ऊपर करिए, so that it will be easy for me to take everyone through that.
अदरवाइज मैं पिकअप करूंगा कि अगला ए बोलेंगी फिर ए बोलेंगे, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग से अच्छा है कि आप शेयर करो अपने, यू गो अहेड विथ योर चॉइस, यू नो। तो अभी ज्ञान शुक्ला बात करेंगे, ये भी बहुत इंस्पिरेशनल आदमी है। मैंने उनको मिला तो नहीं है लेकिन बात किया है एट ए पर्सनल लेवल। तो प्लीज ज्ञान जी गो अहेड। नमस्ते लायक जी, हमने कहा मिलते मिलते रह गए थे हम लोग। मिलते मिलते रह गए थे, सही बात है, आप सही बोल रहे चलिए फिर कभी मिला जाएगा। हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा खास अचीवमेंट तो क्या बताया जाए, पढ़ने में ठीक ठाक रहा, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास करियर रहा मेरा। आई हैव लॉस्ट माय, मेरे पिताजी तो बहुत अर्ली एज में खत्म हो गए, मैं 6-7 साल का था। मेरी माता जी ने बहुत मेहनत करके मुझे पाला वाला। वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचिंग करने जाती थी बड़ी दूर, बहुत उन्होंने मेहनत की। तो उनकी मेहनत उन्हें देख के शायद हम लोगों ने यही सोचा होगा पढ़ने में मन लगाया जाए, नहीं तो कैसे काम चलेगा आगे। बहरहाल एमएससी तक पढ़ाई की, एमएससी स्टैटिस्टिक्स तक। और मेरा शुरू के क्लासेस में तो मैं सब टॉप रहता था, सब दोनों सेक्शन में। लेकिन हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी में भी फर्स्ट क्लास, करीब 70% वाला फर्स्ट क्लास रहा। फिर घर की स्थिति ऐसी थी नहीं जो मैं कंपटीशन वगैरह में बहुत बैठ पाता, तो मुझे बैंक में जॉब मिल गई, मतलब बहुत आसानी से। तो मैं बैंक में चला आया। यहाँ पे कुछ यूनियन के लीडर से मुलाकात हुई, तो मुझे कुछ प्रमोशन वोशन ज्यादा मन नहीं लगा। जबकि हमारे साथी काफी प्रमोशन की तरफ लगे। बाद में मैंने जरूर स्केल 2 तक का प्रमोशन लिया बैंक में, लेकिन शुरू में नहीं मैंने लिया। तो उसकी कोई वजह थी जो प्रमोशन आपने डिक्लाइन किया? यूनियन के लीडर्स इसमें थोड़ा एक्टिव हो गए। अच्छा, यूनियन एक्टिविटी। हाँ, बाकी हमारे यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज होती थी पंजाब नेशनल बैंक में, तो उसमें हम लोग पहले ब्रांच लेवल पे, फिर रीजनल लेवल पे, फिर हेड ऑफिस लेवल पे होती थी, तो उसमें जाया करते थे हर साल। उसमें कई अवार्ड जीते, कई उसमें मिले हम लोगों को, तो उसमें बहुत एक्टिव थे, कल्चरल में भी। लेकिन कभी कभी बड़ा खराब समय भी आता है लाइफ में, ये हमने देखा। 89 से, जुलाई 89 से लेके समझ लीजिए कि जून जुलाई 90 तक, बल्कि 88, 2 साल, लगभग 2.25 साल, इतना खराब समय मेरा रहा। मुझे फीवर पहले आया। वो फीवर ऐसा आया कि 2-3 महीना, वो लगभग एक उतरा नहीं, 1-2 महीना चलता रहा। एक डॉक्टर ने तो बिल्कुल कहा कि इनको ट्यूबरकुलोसिस हो गई। उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस की दवा लिख दी। तो फिर मैंने एक दूसरे डॉक्टर को कहा कि उनसे कंसल्ट करें, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मार्जिनल है, ये कह नहीं सकते कि है कि नहीं है। मतलब फिर बाद मुझे पता लगा कि एक एलोपैथी का सेटअप है, एक ट्रीटमेंट का उनका तरीका ये है, अगर बहुत दिन तक फीवर ना उतरे, 1-2 महीने तक, तो टीबी की दवाइयां शुरू कर देते हैं, बगैर ये जाने की टीबी है या नहीं। ये मुझे तब पता लगा। बहरहाल उन डॉक्टर के जो भी कंसल्ट, उससे थोड़ा सा मैं ठीक हो गया बाद में। फिर मुझे एक दिन बहुत, जनवरी 90 में बहुत तेज दर्द हुआ पेट में। दिखाया जाके तो पता लगा गाल ब्लैडर में स्टोन है। फिर उसका मैंने मार्च में ऑपरेशन कराया, मार्च अप्रैल में। तो उसके बाद मुझे पता नहीं क्या जॉन्डिस हो गया, बहुत जॉन्डिस भी, हेपेटाइटिस बी हुआ, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन पॉजिटिव। तो आप ये समझ लीजिए कि 5-6 महीना मैंने चिकनाई नाम की चीज देखी नहीं। बिल्कुल दूध जो है वो जमा के, उसकी मलाई वलाई निकाल के जमाया जाता था, उसका दही बना दिया जाता था, और दही में उबली सब्जियों में डाल के खाता था। खैर वो 4-5 महीने में, जबकि ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बहुत आसानी से निगेटिव होता नहीं है, लेकिन हमारा करीब 4-5 महीने के बाद वो निगेटिव हो गया। फिर आगे गाड़ी चली। तो बैंक में मैं उस वक्त बाहर पोस्टर था, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि
मुझे आप यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए लखनऊ, तो मेरा थोड़ा आसानी हो जाए आने जाने में, वरना मुझे छुट्टी लेना पड़ता था, बहुत लंबी छुट्टी ली थी। ओह, तो खैर उन्होंने रिक्वेस्ट हमारी मान ली, तो उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह पोस्ट किया कि जो काम कोई कर नहीं पा रहा था। हुआ यह था कि बैलेंस, बैंक में बैलेंस मिलाए जाते हैं ना अकाउंट्स के, तो एफडीआर अकाउंट्स के बैलेंस कम से कम 15-20 साल से नहीं मिले थे, और उसमें कम से कम 3-4 लोग लगाए जा चुके थे पहले, लेकिन वो मिला ही नहीं पा रहे थे। मतलब सब हाथ खड़े करके चले गए थे, और हेड ऑफिस से काफी चिट्ठियां आती थी मैनेजर को भी, रीजनल मैनेजर सबको, ये सब क्या हो रहा है तमाशा कहीं, ये वो लोग बहुत परेशान थे। तो उन्होंने सोचा कि इसको पकड़ो, ये इसको जरूरत है, इसको यहाँ लगा दो। खैर उन्होंने मुझे वहां लगाया। आप ये समझिए कि 2-3-4 दिन मैंने ये ढूंढने में लगाया ये बैलेंस मिले कब थे। मैंने सब पुरानी किताबें निकाल के पता लगाया कि बहुत पुराना, कम से कम मैनुअल अकाउंटिंग था जब, पूरा मैनुअल था। हाँ मैनुअल सब मैनुअल ही था। ये मतलब बैंकों में कंप्यूटर तो आया है करीब 86 से, उसके पहले मैनुअल ही था। तो मुझे पता लगा कि 72 में ये बैलेंस मिले थे। उसके बाद से मैंने सब पूरी बैलेंस बुकें बनानी शुरू की, और सब डिफरेंशियल लिख के, आज मैंने 134 उसमें डिफरेंशियल निकले जो मैंने रिकॉर्ड किए, उनके वाउचर डाले, और फिर वो बैलेंस मिले। उसके लिए मेरा रीजनल मैनेजर ने मुझे अप्रिसिएशन लेटर भी दिया। वो मुझे लगता है कि मैंने कुछ अपनी उसमें नौकरी में कुछ अचीव किया, क्योंकि वो मेरी अपनी अकेली मेहनत थी, और उसके साथ कोई अकेला मैं करता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर बाकी मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने का बड़ा शौक है, हाई स्कूल तक के बच्चों को मैथमेटिक्स में पढ़ाना। उसमें मैंने कई बच्चों को अपने जान पहचान के पढ़ाया, मैं कई तो इंजीनियर भी बन गई जाए। तो मुझे आज भी मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे अच्छा काम अगर दुनिया का लगता है मैथमेटिक्स पढ़ाना। मैथमेटिक्स, ओह वाओ। अभी भी, अभी स्टिल अगर कोई बच्चा आ जाए तो मैं पढ़ाऊं उसको। अच्छा। और दूसरे फिर मुझे, मेरे फादर इन लॉ होम्योपैथ थे, तो मुझे होम्योपैथी में भी रुचि हुई। ओके। तो होम्योपैथी की किताबें मैंने काफी पढ़ी, मेरे पास अभी भी हैं। उससे मैंने लोगों को ट्रीटमेंट करना शुरू किया। आज भी हमारे कई दोस्त सब मुझसे दवा पूछ के, बड़ा फायदा उनको हो जाता है, और सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जान के कि चलो उनको कुछ फायदा हुआ। ये भी मेरा एक शौक है समझ लीजिए। और बाकी गाने वाने का शौक तो आप लोग देखते रहते हैं यही थोड़ा बहुत। वो तो देख चुके। और फिर मैं जब ऑफिसर बन के जब वहां फैजाबाद पोस्ट हुआ, तो वहां भी मुझे कहा कि आप बैलेंस मिलाइए, वहां के बैलेंस बड़े टेढ़े थे। वहां भी मैं लगाया गया, तो मैंने उसको क्या मिला दिया। तो इस तरह चैलेंज स्वीकार करने मुझे बड़ा मजा आता है। बाकी फिर मतलब बैंक का मैं बहुत अच्छा माना जाता था, जबकि बैंक की नौकरी मुझे कभी भी रास ना आई, मुझे अच्छी नहीं लगी। ये एक विडंबना। अभी ऐसा है बस ना इसी कि तरह। when you don't get what you want, be happy with what you get, बोलते हैं ना। हाँ मैं टीचर बनना चाहता था, मुझे टीचिंग सबसे अच्छा लगता था जॉब, लेकिन टीचर नहीं बन सका। तो बहरहाल उसी में रिटायर हुआ। मतलब आज पेंशन भी मिल रही, सब कुछ चल रहा, गाड़ी चल रही बस। बस चलती रहे गाड़ी ऐसे। कुछ हाँ, कुछ बीमारियां भी बीच बीच में और भी आ गई, हार्ट वार्ट की भी थोड़ी, मतलब बस चल रहा बस गाड़ी किसी तरह। पैरालिटिक स्ट्रोक भी एक पड़ा, उससे भी निकले, डॉक्टर ने कहा अब आप ठीक हैं। सब मतलब झेलते झालते गाड़ी चल रही है। नहीं, ऐसे फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि ये झेल लिया, हाँ इससे बाहर उभर के। मैं लाइफ के प्रति अप्रोच बड़ी पॉजिटिव रखता हूँ, बहुत अच्छा निगेटिविटी है। को मतलब आने नहीं देता अपने अभी आसपास। आप तीसरा आदमी कोशिश हैं, अभी करता हूँ आपने आ जाए तो बोला उसको दूर करूँ, हम दो ये जन हमारा मिल रहता के है। भी पॉजिटिविटी देखे, हम आप भी एकदम पॉजिटिव हैं। इससे आप उभर आए हैं ना, जो भी आपके प्रॉब्लम्स आए, जी जी। प्रोफेशनली हो या हेल्थ वाइज हो, सबसे हाँ बाहर निकल हाँ। के आगे बढ़ते रहना है। तो ये तो आप बहुत अच्छी, एकदम बखूबी निभा रहे हैं आप। आई कैन टेल यू दैट। तो अच्छा लगा ये सब सुन के कि
और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, ऐसी वाली बात है। थैंक मैंने यू। योग भी सीखा, योग का एक दिन बताया था मैंने योग, हाँ आपने तो लेकिन कुछ दिक्कतें आ गई उसमें, योग भी छूट गया मेरा बहुत कुछ। अब तो हाँ थोड़ा बहुत हाथ पांव हिला लेते हैं बस। मैंने ये सब चीजें इसलिए सीखी कि लोगों को कुछ फायदा हो सके हमारे नॉलेज से, मेन उसका उद्देश्य है। अच्छा हो रहा है, फायदा लोगों को तो डेफिनेटली हो रहा है। ऐसे विथ लिमिटेशंस लोग करते हैं तो देख के तो इंस्पिरेशन तो आता ही आता है। जी, सो दैट साउंड्स गुड, थैंक यू वेरी मच ज्ञान जी। एंड थैंक यू सर, थैंक यू। होपफुली मुलाकात होगी हमारी कभी ना कभी बिल्कुल रूबरू। बिल्कुल। आएंगे सर फिर किसी दिन कभी। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। अभी आप फिलहाल कहाँ पे रह रहे हैं? मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, अच्छा अच्छा, चलो। करीब 50 साल से लखनऊ में हूँ। तो अभी 50 से ज्यादा हो गया अब तो। एकदम नवाबी आदमी है। अब तो लखनऊ में ऐसी कौन सी फिरदौश है जिसे हम नहीं पहचानते, बोले ना। लखनऊ में ऐसी कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते? ऐसे बोलिए राजकुमार, राजकुमार। मेरे हुजूर पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो लखनऊ में ही शूटिंग हुई थी उस पिक्चर की। जी जी जी। राजकुमार, यहाँ पे भी एक राजकुमार कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ सर, लखनऊ की यादें जो होती हैं इतनी मधुर हैं कि जी, भुला नहीं सकते सर। मैं आप भी लखनऊ सन में रहे? 64 से रह के, जी। हाँ, आरडीएसओ कॉलोनी आलमबाग, मैं अच्छा आरडीएसओ अच्छा। में जॉब करता था, रेलवे में जी रिसर्च जी। ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, सन 64 में जब वो हम लोग जो आए थे, स्टार्ट हुए थे, जी। दैट टाइम आई वाज ऑन इन क्लास 5th। तो क्लास 5th से लेके अब 14 में मैंने वो लखनऊ छोड़ा है, अच्छा रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, मैं भी और मैं 14 आगे में ही रिटायर हुआ, हम तो लखनऊ में ही बस गए। और आलमबाग एरिया में था, आशियाना में मैंने अपना मकान बनाया था। अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत आप कहाँ के बढ़िया। थे लखनऊ में? जी, हम लखनऊ अलीगंज में रहते हैं। अच्छा, अलीगंज में, अलीगंज एक किनारा ये मैं तो, एयरपोर्ट की तरफ था। हाँ, हाँ, आलमबाग और अलीगंज काफी डिस्टेंस है। चलिए गुड, आप लोग जुड़ काफी गए अभी डिस्टेंस है। इसमें। देखिए आप लोग लोकल जुड़ गए अभी, अच्छी बात है। तो अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट कोई ना कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा, उनकी तरफ मुड़ते हैं। हाथ तो किसी ने ऊपर नहीं किया है, तो अभी मैं मेरे इमीडिएट मेरे राइट में है रमा जी। तो मैं रमा जी को दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में हम लोगों को कुछ बताएं, सो दैट वी विल गेट टू लर्न समथिंग मोर उनकी तरफ से भी। Thank you so much. Can you hear me? A little low you sound, but थोड़ा सा आवाज अभी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी ठीक है? ठीक है, फॉर मी इट्स ओके, डेफिनेटली आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट ठीक ठाक है। I'll hold the mic closer. हाँ जी। इन द मीन टाइम नेक्स्ट whoever would like to share, kindly go ahead and reaction बटन दबा के हाथ ऊपर करिए प्लीज, दैट विल मेक थिंग्स इजियर। चलिए जी, रमा जी गो अहेड। चलिए, मैंने ज्वाइन किया थोड़ा लेट, तो मैं सुन रही थी राजकुमार जी को अपने बारे में जो बोल रहे थे, उसमें 2-3 पॉइंट्स में जिक्र करना चाहती हूँ उसका। वो बोल रहे थे कि मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, समथिंग लाइक दैट। या ये जो है हमारे प्राचीन काल से आ रहा है कि सूर्य को नमस्कार करना है, सूर्य नमस्कार करना ही है। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य नहीं तो धरती नहीं, हमारा लाइफ नहीं, क्रिएशन कुछ भी नहीं। उसके ऊर्जा से ही हमारा जो भी क्रिएशन है वो है, तो उसी से हैं हम, वो एक। इसलिए वो बनता है कि हम रोज का सूर्य नमस्कार करें या थैंक हिम फॉर द लाइफ दैट इज। और एक चीज है सूर्य में, ही इज ए सिग्निफिकेटर फॉर आइज, आंखों के लिए वही देवता है। और उसके अलावा मेडिसिन के भी वही देवता है। इसलिए कितने हैं इनमें गुण कि हमको उनको, आई मीन, वी हैव टू प्रे टू हिम एंड देन स्टार्ट आवर डे। दैट इज अ वंडरफुल थिंग दैट ही मेंशन, दैट इज सो नाइस। और इनका और एक पॉइंट मुझे बहुत, आई मीन, इट मेड मी थिंक कि कुछ भी हो, बुखार हो या कुछ भी हो, खाना खाने के बाद ही मेडिसिन लिया जा सकता है, वो डॉक्टर्स बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों ऐसा? बीमारी में पहले हमारा एनर्जी तो बहुत डाउन, वो तो है। ये शायद आईवी में हो, आई मीन सलाइन ग्लूकोज में हो या कुछ भी, दैट इज नॉट इनफ एक्चुअली। क्योंकि स्टमक में हमारा जो भी सिक्रीशंस एसिड वो सिक्रीट होता है, क्योंकि जब फूड अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है, उसको हजम करने के लिए ये क्या बोलते हैं, सिक्रीशंस, दे टेक प्लेस इन इनसाइड द स्टमक। Yeah. और एक चीज है, स्टमक बहुत, उसका लाइनिंग है ना स्टमक, वो ऑर्गन वो बहुत डेलिकेट है। इट हैज थिन मेम्ब्रेन, स्किन की तरह, लेकिन वेट है और मेम्ब्रेन है। अगर एसिड उसमें आया कांटेक्ट में, वो स्टमक के स्किन में, मेम्ब्रेन में, तो उसको जला भी सकता है। इसलिए अपने को एसिडिटी का या अल्सर का प्रॉब्लम इसलिए आता है। एम्प्टी स्टमक में बहुत क्या करते हैं, उपवास रहना, हाँ that हाँ creates acidity in the stomach. So time to time 4 hours पानी एटलीस्ट पी लेना चाहिए। अगर 3 मील्स कर रहे हैं या 2 मील्स कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ उस स्टमक को थोड़ा केयर करना। फूड जरूरी है, अगर बुखार में है या कुछ भी हो, कुछ आहार लेना, बाद में फूड, क्योंकि वो फूड जाने से अंदर एसिड अपना काम शुरू करेगा। एंड वन मोर थिंग, मेडिसिन में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स रहते हैं जो हमारे रिकवरी में काम आते हैं, जो भी बीमारी है। तो ये अगर एम्प्टी स्टमक में खाली पेट हम लोग मेडिसिन खाएंगे तो क्या होगा, पहले से ही एसिड है वहाँ, मेडिसिन भी जाएगा जो स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों मिलके पक्का एसिडिटी का एक पेशेंट बना देंगे। But there are फॉर some दैट, medicines which have to be taken empty stomach, ना? वो भी तो बोलते हैं कि व्हाट there इज इट, व्हाट इज इट? there are some situations wherein you'll have to have it in on empty stomach. I do. It must be something very rare. Those medicines, yes, Diabetes, before food. Yes, what you're saying is before before food. food. But before food का बहुत gap नहीं रहता between medicine and food. हाँ, 20 Not minutes, much, हाँ, 20 not minutes much of मांगना. the gap will be there. Right. पहले वो, and that too, ये वो मेडिसिन जो है वो डाइजेस्टिव इसको थोड़ा सेट करके ही फूड लेने का हमसे कहते हैं डॉक्टर्स। वो मेडिसिन भी डिफरेंट है जो हम बिफोर फूड लेते हैं, वो एक चीज है। और मेडिसिन जब लेते हैं तो कभी भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को लेना ही चाहिए, क्योंकि दैट प्रिवेंट्स अल्सर। सो इसके साथ में उनका थोड़ा ये हमने कर दिया, ऐड कर दिया, जो भी है वही मुझे याद आया। नाउ अचीवमेंट्स का क्या है, मेरे आपने तो बहुत टीन्स कुछ अचीव किया है. I think it नहीं is नहीं possible for all to know. हमको थोड़ा बहुत पता है, याद भी है. But ठीक है। there are a lot of new faces. हमारे 16 साल में हमको पॉलिटेक्निक में भर्ती करा दिया गया। हमको एजुकेशन मैंने HSC 11th क्लास तक, 11th क्लास का जब था, PUC 12th नहीं था, तो 11 11th plus से, 4. हाँ 11th HSC, उससे डायरेक्टली हमको पॉलिटेक्निक में एक भर्ती करा दिया है। जब जब हमारा हाल थोड़ा मुश्किल से गुजर रहे थे, हमारे मम्मी भी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, जो इन्होंने बताया, पहले जो बात करे थे तो उन्होंने बताया, तो मैंने भी सोचा अरे कितना ये है। मेरी माँ भी बहुत बहुत कष्ट उठा के हम लोगों को बड़ा पाला पोसा, इसलिए हम लोगों का एक ही फोकस था कि हम लोग अच्छा पढ़ लें और कुछ जॉब में आए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना सीखें। ये जब 1970s में ही शुरू हो गया था ये एक कॉन्सेप्ट। देन वी वेंट इनटू एजुकेशनल विद दिस थिंग। मेरे टीन्स में 16 साल में जब मैं कॉलेज गई, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जब फाइनल ईयर में थी, तब इलेक्शंस हो रहा था, स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन। ये स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन में क्या है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ओनली कैन
एंटर द कॉन्टेस्ट, जो भी है। तो इलेक्शन का हमारा नाम मैंने दे दिया, और मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँगी एंड किसको कौन से पोस्ट को। मैंने बोल दिया ठीक है, प्रेसिडेंट, आई विल बिकम द प्रेसिडेंट, आई मीन आई विल कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंट्स पोस्ट, दैट्स इट। आफ्टर दैट उसके बाद में मुझे पता नहीं चला, मैं देख रही हूँ कितनी लड़कियां, ये गर्ल्स का पॉलिटेक्निक था, तो ये गर्ल्स सारे कितना पैसा खर्च करके एडवर्टाइजमेंट्स, बैनर्स, Wow. what not, balloons, for a simple election। जब का टाइम था कि मैं बहुत पढ़ती थी एक मैगजीन्स, रीडर्स डाइजेस्ट का बहुत प्रभाव था मेरे ऊपर, तो उसमें थोड़े ऐसे आर्टिकल्स आते, तो उससे मैंने थोड़ा सीखा कि हमको करना क्या चाहिए, इलेक्ट होने का क्यों, कैसे किया जाए। तो मैंने एक तरकीब सोची। 10 मिनट्स पहले मैं कॉलेज पहुंच जाती और सारे क्लासेस के 5 मिनट्स के अंदर एक क्लास को खत्म कर देना। दैट इज, आई वुड गो इनटू द क्लास, नमस्कार, मैं रमा अय्यर हूँ, मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट में, आई मीन आई एम गोइंग टू स्टैंड फॉर द Interesting. प्रेसिडेंट कंटेस्ट, ये बोल के निकल जाना, थैंक यू, प्लीज वोट फॉर मी। दैट आई यूज्ड टू डू फॉर ऑल द क्लास। फटाफट फटाफट 4 मंजिल का वो जो क्लासेस थे सब कवर करके ऐसे आके मेरे क्लास में बैठ जाती। आई डू नॉट नो what I mean, every day 10 days before the election I used to do this campaigning। और पैसा नहीं था खर्च करने के लिए, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, बैनर नहीं, कुछ भी नहीं, मैं अकेली, मैं जाती, नमस्ते करके ये सब बोल के आ जाती। When the elections were held, many people said that ये लड़की तो नहीं आ सकती, बट सभी लोगों से 4 गुना वोट्स मुझे मिले, and yes, I got elected as the president। From then on, that the journey of talking in public, presenting reports, annual report or whatever, and the receiving important guests, those who came for validatory functions, yeah, annual day functions। और हम तो गाने में बहुत we were there music, मेरा जो भी म्यूजिक कंपटीशन था स्कूल से कॉलेज में भी मैं प्राइज जीतती थी। that time, that was the thing, that was the trend। और उस समय में मुझे बहुत रुचि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ज़ोडिएक साइंस में, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सब मुझे बहुत बहुत इंटरेस्ट। तो हर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विल ऑलवेज बी विथ मी, आस्किंग मी, मेरा नंबर 4 है, तो मैं 4th के दिन पैदा हुई, तो मेरे बारे में कुछ बोलो, ऐसे। तो आई वुड रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड देन टेल, दिस वाज समथिंग लाइक दैट। मेरा इंटरेस्ट उसमें बना रहा। म्यूजिक एक तरफ, and at academics, yes, we had to work hard, there is no excuse like मुझे नहीं आता मैं, so we used to work hard and I passed and then I did BCom। मुझे काम में जाना पड़ा क्योंकि फैमिली में मेरी बारी आई कि मैं काम करूं, तो डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस पास करके मैं जॉब में चली गई। और मुझे इतना फील होता था कि मैं कुछ ना कुछ बैचलर्स डिग्री करूं, क्योंकि मेरे सिस्टर्स इंजीनियरिंग में भर्ती हो गए, एक बीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन मैं डिप्लोमा ही कर पाई। एंड देन आई वेंट टू डू जॉब टू सपोर्ट द फैमिली फॉर अ टेम्पररी पीरियड। देन आई टुक अप अ जॉब। इवनिंग में एक कॉलेज था जो बीकॉम ऑफर कर रहा था, कॉमर्स। सो बीकॉम में वहाँ, तो जब सवेरे निकलती, रात में ही आने का, क्योंकि वो somebody is telling ओके। तो ये हुआ। देन आई पास दैट बीकॉम ऑल्सो। देन जब तक वो 3 साल में जब मैं काम कर रही थी, घर में हमारे सिस्टर, उनका जॉब लग गया, तो उसने बोला कि, वो बोली कि तुम स्टडी करना है तो करो, कंटिन्यू करो रेगुलर कॉलेज में, मैं सपोर्ट करूँगी फैमिली को। तो मैंने लॉ अप्लाई किया, लॉ कॉलेज में मैं
3 साल I finished my LLB. And that is how. And then in between LLB also, I did my business management course also, evening course, because I got used to this. आराम नहीं करना evening में, कुछ ना कुछ वो रहना है. So that those were education line में पूरा हो गया, and the service. Then मेरा खुद का business मैंने start किया, फिर सब कुछ try किया, बहुत ही सारा try किया मैंने. Then I got interested in at my 48th year. I got interested in Indian astrology. Astrology के बारे में तो मेरा बहुत, I mean, I was a zero, but I was pulled into it by accident. मेरे गुरु थे, वो मेरे से बहुत छोटे, और उन्होंने बहुत अच्छा फाउंडेशन मुझे सिखाया. बट आई डिडंट रेस्ट देयर. 25 years पहले की बात है ये. And then he taught me the fundamentals. And from then on, books खरीदना, और मैं कुंडली को, I mean, horoscope, I used to read horoscope. Even now I'm doing that. I do a lot of research in astrology also. I write reports. I do that. And मेरा तो एक दिन भी जाता नहीं जब मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोचूं या रिपोर्ट लिखूं या कंसल्टेशन करूं. My favorite is to teach astrology for beginners. कुछ भी नहीं आता, ब्लैंक जीरो है. आ जाओ, 1 महीने में मैं आपको फंडामेंटल्स पक्का सिखाते हैं. And I have students from abroad who come and So you take do it on Zoom or something, I mean, online training. online. WhatsApp में वो लोग बोलते हैं हमको, I don't even have to, we don't have to see you, Guruji, you just talk, and that is how the lessons run for me. I mean, they may not have seen me also. You all are seeing me, but my students may not have seen me. और WhatsApp में ही चलता है, one-on-one classes. उसमें जो सुकून या that achievement, क्योंकि इतना भंडार है, वो कितना नॉलेज, कितना भी करो, कितना भी टाइम स्पेंड करो, काफी नहीं. So I love that. I love that about you. Yeah. और कल एक्लिप्स था. कल का एक्लिप्स सूर्य ग्रहण 15 दिन पहले हमारा चंद्र ग्रहण हुआ. तो चंद्र ग्रहण में मैंने 3 टॉपिक्स लिए, उसमें कंटिन्यूस 15 डेज के लिए, क्योंकि दैट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर मेडिटेशन और स्टडिंग occult sciences. So I chose 3 topics and studied till today. I'm doing it. I mean, continuing that study. The eclipse time में मेडिटेशन का बहुत प्रभाव हो सकता है, हमारे मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है. So, some people have been cured. They have, even yesterday, somebody was having a very great, difficult time. Then I took them through this thing, and then they were happy. So, यही है, क्या अचीवमेंट है. डिग्रीज नहीं, डिग्रीज का तो कुछ भी नहीं है. लाइफ जो सिखाता है ना, वही सबसे बड़ा डिग्री. तो इंसान को पहचानना, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना है हमको, रिस्पेक्ट के साथ. वो जो बड़ा भी आदमी हो या बहुत छोटा हो, उससे काम नहीं है. वो हमारी तरह एक इंसान है, इसलिए हम लोग उसको सीधी तरह से रेस्पेक्ट से बात करना है. वो चाहे मर्डर करके भी आया हो हमारे पास, फिर भी हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो इंसान है. वही मैंने सीखा है, इसलिए मैं वो फॉलो करती हूँ, और किसी को जज नहीं करती हूँ. ये बुरा आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये काइंड है, ये अनकाइंड है, नहीं. वो कुछ भी हो, हम लोग कौन होते उस पर जजमेंट करने के लिए. तो किसी से वो बात सुनते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. मैं आई जस्ट कट दैट. आई डोंट हैव एनी जजमेंट रिगार्डिंग एनीबॉडी. सो यही है, चल रहा है भगवान की कृपा से. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much. Yeah, I mean, I think one of the best things I really echo the same sentiments is regarding respect to individuals.
It's a value. It's a part of a value system where we say that okay, जो भी हो इंसान है तो पहले उसको रिस्पेक्ट किया जाए. ये तो वैल्यू करके है, लेकिन ड्रॉप ऑफ हेड आई फील अरे वो यूजलेस फेलो है, वो क्या घटिया खेलता है, ही डजंट डिजर्व अ प्लेस. These are judgmental things that immediately comes up. The Yes. moment we see a cricket match and somebody doesn't perform, तो तुरंत हमारा रिएक्शन आता है, which is also not a right thing to do. But then not expressing also is not right. तो बोलो भी गलत है, नहीं बोलो तो भी गलत है. But yes, I subscribe to the value system of respect to an individual. Yes. उसको उसके कोई दो राय नहीं है. That we have to do हर हालत में, regardless of age. बच्चे भी हो या बड़े भी हो, बुजुर्ग भी हो, all of them deserve that kind of respect. Sure. Sure. Thank you, Ramaji. बहुत अच्छा लगा. I've heard you in the past also. We know each other quite a bit. So पता है आपका forecasting and other abilities के बारे में. Thank you so much. And no wonder all the students were after you. मेरा date of birth अभी भी कोई लिखा, राजकुमार जी ने लिख दिया है 15 में 1954. तो आप कर सकती हैं काम. इनका Thank you बहुत so much. विल पावर है, जो भी है राजकुमार जी. हाँ, जब yeah. नंबर बताते हैं तो हाँ. इनका है only sheer willpower and he keeps going no matter what. Yes, yes. That is his Ramaji. strength. ठीक है बस. सरोज जी, you had raised your hand. आपने हाथ नीचे कर दिया. Sir, I just wanted to have little difference of opinion with Rama ma'am. First of all, I would like to congratulate her on her achievements, and she's such a soft-spoken, gentle lady that anybody will fall in love with her. But only point of difference, I just want to convey that there are certain medicines which have to be taken on empty stomach. You're a doctor, Especially yes. like thyroid and the antituberculous drugs have to be taken on empty stomach, because otherwise there is no absorption of that when it is taken with food. And other things like vitamin D3, which we all have to take at the later stage of life, which prevents our osteoporosis. If you take D3, initially when the drug was new, when it was introduced, then it was advised to be taken on empty stomach, because the absorption is affected. But now they say that it should be taken with the meal, so that the vitamin D in it helps in absorption of calcium which is in the food, so you don't have to take extra calcium. So there is certain chemical reaction with the acid in the stomach, which either it helps in absorption or it delays. Another thing is, like, if food contains a lot of fatty things, like butter khaya, aisa kuch khaya, because that delays the emptying of stomach. So if emptying of stomach is delayed, the antibiotics which you take otherwise, then they are not effective. So some antibiotics you have to take on empty stomach. So you have to follow the advice of the doctor, and depending on. And another thing, one more thing you said, that about B complex, which doesn't actually form the lining of the stomach. It actually helps to retain the normal bacteria which are there in the intestine. Antibiotics, when we take, they kill the germs which are in the intestine. So you have to take extra B complex, so that your normal flora of bacteria is continuing, and that is helpful. Some bacteria in the intestine are helpful, which help in our digestion. That is little just my opinion. I mean, Yeah. what I have learned from my experience and my education. So this little correction I wanted. I mean, you may be having your own this thing, but there are certain medicine, like especially the homeopathy, you are not supposed to take with
coffee and tea and all. There are restrictions for that. But allopathy has got other set of, principles, so you have to follow them. That's it. And otherwise, I appreciate your achievements, ma'am. And you're such a beautiful, soft-spoken, gentle lady. I love you a lot. Thank you. Thank you. We were, I mean, our topic, we have digressed a bit, but then it's useful anyway. The information is always useful. So, who is next going to talk about his or her achievements? कोई तो हाथ ऊपर करो, वरना मैं आपके हाथ ऊपर कर दूंगा. Vishwanathan, come, my friend. Sir, can I thank Sarojji for Please. more information that she gave? Yes, I did agree. There are medicines which have to be taken before meals. That also I told her. I did mention about that because before and after is always written by the doctor in the prescription RX. They do that. BF So yes. So there is a must because this empty stomach is able to absorb those chemicals very fast on an empty stomach. So, and then food follows. That is. Thank you, Sarojji. Thank you so much. Thank you. Yeah, Vishwanathan. Well, yeah, good evening all. Just on the subject of medicines, just two quick doubts. What Sarojji has told, even some doctors prescribes, especially antacid. Antacid, they prescribe to be taken before meals if they are prescribing antibiotics. This has been my experience with my doctor. I don't know how far it is correct. And one doubt I had is whether these multivitamins can be taken on a daily basis. Somebody can clarify that. Anyway, we'll take it up. I think we are distracting from the topic. Okay, I understood the topic is about achievements, is it? Personal achievements. That's right. So, बचपन हो या जवानी हो या अच्छा, जो भी है achievements. Oh, okay, I am not the right person to speak. Anyway, I am trying to think. Okay, one great achievement, the greatest achievement ever that all of you have achieved. That is that I am live today. I am live to talk to you. Okay, this is you can say for any senior citizen, this can be considered as the greatest achievement. Okay, and it is not an achievement; it is the grace of God. That's all. Okay, so and another achievement for senior citizens that if you are maintaining a reasonable health, that itself is a wonderful achievement. That it shows that you have taken reasonable good care of your body and mind. Okay, but there are circumstances beyond our control. The entropy, what they call it, aging factor, and all those things are there. But with a good mindset, this also can be fought. This entropy can be fought. And regular routine physical exercise is a must. So I go for my daily walk, never miss my walk. And I've been doing a bit of yoga. The routine keeps changing, because earlier I was in Baroda where I had my own terrace. So I used to elaborately do for 1 hour all the yogic exercise. But having shifted to Mumbai, it's a 1 BHK. So I'm not able to do it. Like Surya Namaskar, what Ramaji told, it was very important. So now I am actually missing my Surya Namaskar. I go out to the park, but there you cannot do a full-fledged Surya Namaskar, though some people are doing, but there are some inhibitions. So I just do some freehand exercise, walking, etc. So, okay, maintaining reasonable health is a great achievement. And if you talk about personal achievements, as on date, समस्याएं तो बहुत ही जिंदगी में आती रहती है, अभी भी है, लेकिन I am able to retain my sense of humor, okay, which has been cultivated since childhood.
thanks to my brothers, elder brothers, and a lot of good friends I had. So that sense of humor I have developed since childhood, and it's a great asset. It's a, I mean, so sometimes you can laugh it off your own troubles. Okay, so and of course, what you are today is often based on what are the habits you had cultivated during childhood in your growing years. So reading was a good habit I cultivated, like Madam told, Reader's Digest and all. So automatically you can filter out the good values. TV and today's social media and all, it unfortunately can't provide the same set of value systems to the growing children. Okay, it's all corrupt. It's full of drama, violence, etc. Those things sell rather than good values. Okay, so this we were fortunate enough to have grown in a time period where it automatically we imbibe some good values from our family, from our parents, etc. And my father, I should thank my father. I mean, he was not a strict disciplinarian or something like that. He was a very casual, but he was very simple-minded, and still we were afraid of him. Okay, that was the beauty. I mean, we never used to talk in front of him. But he had a set of system, though he did not, push it on a good value system, okay, which I am still maintaining. And for example, totally incapable of being rude, unless provoked to a certain extent. So people say you should love people unconditionally. Unfortunately, I unconditionally hate rude people. Okay, I can tolerate, foolishness, innocence, etc., but can't tolerate rude people somehow. Okay, so of course you cannot judge. You have to see the motives of others. So anyway, nothing to do with the achievement. I'm just telling, but these are the you can call it, these are the achievements or the values you have inculcated that help you to face the life in a positive spirit. So that way, coming to my personal achievements, I don't think there is any big achievements to really blow my own trumpet. I had an engineering career. I am an engineer by accident, you can say. My mind was elsewhere in fine arts and all that, but I landed up in engineering, and successfully, it is a miracle, successfully I completed a career, good career. I must say it was a good career in engineering, electrical engineering. Okay, and specific achievements like engineering, I was in the power sector, and I was in power plants operation where I have to work in shifts. So naturally, I got bored of that. I wanted to quit that job. I was in Gulf, Saudi. I was in Saudi even the first few years. After 4 years of experience in Mumbai, I worked in Saudi Arabia. So I was in the late 20s then. So I thought that I should get out of this shift life and change my career. Incidentally, that time the computer was getting introduced. It was a very nascent stage of computer where you get home computers and all. So somehow I got a home computer and started developing my own programs, which I was not aware, just out of interest. And I could develop a lot of indigenous programs myself. For example, simple thing, we had a shift, people rotating in shift. So people were planning their holidays for the year to match with the long off, what they call. Long off means after the night shift, you get 2 days off. So, and there were 4 shifts.
So people cannot judge which shift they will be on, say, November 23rd. So I developed a program, say you just feed in November 23 and you should feed the which shift group you are in, and it will give you the day, okay, and whether it is your log off or whatever it is. So I thought it was a great achievement. Not only that, I developed some children's games, etc. And I developed even the national anthem, automatic playing music, etc. And Lakshman, our good friend Jairam, he took care of the drawing part of the flag. The computer will automatically draw the flag, and I took care of the national anthem. So it came out very brilliantly. So I thought, oh, I am cut out for a software engineer, and what am I doing in a power plant, sitting in night shift and all that. So I just quit the job and came to Bombay. I don't know, it was a very foolish decision or foolhardy decision, I don't know. I thought I am going to start all over again in a computer career. But I failed because I was already over age and I was competing with freshers. So that didn't work out. But luckily, I got a, again, power plant based job, but in a consultancy, which was okay with me, design consultancy. And I did fairly well in a design and projects career. And it was a fulfilling career. So that I can consider as an achievement. Okay. And as far as special interests are concerned, I loved writing. I used to just read, and slowly I started with my father, who used to solve these crossword puzzles. I used to watch him, and I used to try it out. So crossword puzzles, and then I graduated to this caption contest. This midday paper, they used to publish photos every Sunday during the 80s. Caption contest, yes, I know. Okay. And you have to give a caption. A lot of prizes I won, and I used to get a coupon, and I have to go to Bandra to that particular shop. But inevitably, whatever you select will be costlier than the coupon work. That's a different thing. But it used to give you a creative satisfaction. So I slowly took to writing letters to editor and this and that, and I indulged in writing. And during my last phase of the career, which was a long career, again in Saudi Arabia for 14 years, I got a lot of free time. Okay, in workplace also I got free time to indulge in writing. So I used to write blogs for it's a website called suleka.com. I don't think it is in existence now. So I used to write a lot of articles, mostly based on old films and old music, which was my area of interest. So I used to write reviews of classic films, and then I started parodies of old songs. Okay, which is still going on. Okay, thanks to patronage from some people who love old songs and humor as well. So, and I mean, it cannot be called achievement at all, but it does give a creative satisfaction and a healthy diversion, you can say, and keep your mind light on, okay, to face the hard facts of life. Okay, and one achievement, but not, it was, I had to work hard for that, is writing a book. I got in touch with one of my Facebook friends, and we decided that let us write a book. Okay. But he just gave the core idea, and he said, your writing is better, you carry on. I will just review and all. He used to contribute with ideas. Then we set out to write, mostly it was written by me. Okay. But it was mainly designed we had an idea to sell it to Bollywood, which has not materialized so far, because Bollywood is a big fortress and it's not easy to enter unless you have influence. And also there are copyright issues and all.
But over a period of 4 or 5 years, we managed to churn out a book and publish it. Okay. And we don't know whether it is being bought outside or something in ebook. We are not even monitoring that. But we can say, I have written a book. So sometimes I go through the book and feel, oh, it's not a bad job. So, so I feel a sense of achievement or whatever, pride you can call it. Okay. And other than that, there is nothing. Of course, in Baroda, I stayed for 7 years. So last 7, I returned to Mumbai only last September. So there I took up this IELTS coaching for Gujarati students who aspire to go to Canada. And I found a great deal of satisfaction in teaching. It's something a different level altogether. When you teach a student, okay, which I had never experienced, I never had a teaching experience, I never had, but I took it, and I got a chance to train a few students. Some of them successfully migrated, got a good score in IELTS exam, and they have migrated to Canada. And they used to thank me. Okay. And so that gives me a satisfaction that, okay, I had helped some students. And but unfortunately, again, during the COVID time, it got disrupted. And after a long time, I tried to take it online. But was again a temporary arrangement for a few students. So now I wish to pursue again that IELTS coaching, but I have not again, lethargy and inertia. I have not yet started with that. And so I think that is, that's all. Okay, if you can call it achievements. Okay, thank you, Lax. Thank you, Vish. We definitely, I have read your book. I have also read a lot of parodies, and I have tried to sing your parodies as well. They are very enjoyable ones. And being your classmate from 1970s, so we definitely know each other well enough. So great. We have not spoken about many other achievements, but let's look at other options, and we see anyone else who would like to share, or shall I go ahead and take names? Asha Jamkar. I'm just randomly taking a name. Asha Jamkar, yes. Good evening to you. Good evening, sir. No achievements as such in life. I was a normal human being. Don't dilute your achievements by just saying that I'm normal. We are all normal. I mean, I also feel many times, kya teer maar diya, but it's okay. Something must have happened, no? I mean, in all these years. So when I was small, young, most of the learning took place from my parents and the environment. My mother was that way well educated, though that period of time she was a postgraduate, so she understood that when daughter comes from school, then whatever homework is there, very regularly she had been taking care of me. So all that had helped me a lot in my upbringing and in general. But then I was not very ambitious. Neither my parents ever told me that you have to take certain line to go ahead and anything like that. So it's fine. Still, I was a good student and graduated with honors in geography. That was my favorite subject. Then later I got married. And when I was blessed with first son, then suddenly my life changed in a sense that certain responsibilities, how to bring him up, and
if I would do good things, he would watch me and he would also follow that. So that changed, me a lot. And I started working in a school then. And what was the current syllabus at that time? I was staying, updated with all that. That was the main idea about it. Am I audible well? Oh, well, very well. Okay. So this is how it was all going on. And then I was blessed with the second son. So my teaching line, I just felt that I should quit now, so that I would be able to pay probably more attention to my sons at home. But then another thought was, if I would go to school, I would be able to just have a silent watch also that they are doing perfectly well. And if any kind of guidance is required, then I will know at right time, rather than it's rather than it would get too late later on. So that was the intention. So that helped me a lot, I felt. And they were doing perfectly well. I never interfered neither in their classes or in their studies. They were independent, and I had to prepare my own lessons for the next day. So they used to watch me. Mommy is sitting and reading. She is also preparing her lessons. We better sit and do our own. So that, just to create an environment. I wanted that, yes, I should stay attached with the institute, educational institute, so that they would also follow it in a normal, natural course without putting a pressure of any kind. So that is how, and then later on, after 12th, they went into this armed forces, and they are okay now. My elder son is a group captain, and younger son is a wing commander. Wow. So they did their own. They chose their own fields, and so okay. But then I continued to work for 36 years in a school. Oh, wow. So all that, because later I thought now children have gone to fly. But now if I would stay at home, what would I do? Simply sitting and worrying at home, rather than better stay attached to the institute, so that I am also busy, occupied, and also trying to give some valuable education to the other young children. And then after working for 36 years, I realized that so much we put in from our side, the teachers. And today, all my students, they have grown up and they are so well set. That's my achievement, I felt. Fantastic. Because children, when they grow, their appearances change. They look different. They grow tall, and also features change. But then, so we are not able to recognize at times when we meet in some public places, social places. Then they are able to recognize us. They come and meet us. Right. So, and they try to, they recall everything and try to tell us everything. So that I felt is my achievement, that they are well placed today, all my students. Fantastic. So teachers' contribution play a great role in the society for upbringing of the young ones. And that creates a good society. A person with good heart, if contributes more and more to the society, definitely the society is any time achieves. Fantastic. Fantastic. That's This is a small achievement of my life, I felt. one of Haste the, खेलते it's only one of the achievements you have shared. बहुत कुछ होगा. So that was good. Very nice to hear. And
Actually, I am reminded of the last Sunday that I went and met my 96-year-old teacher in Bombay. So it was, I mean, something similar when children go and meet you, come and talk to you about those your days of your. So automatically you feel that you relive those moments. So Yes. my 96-year-old teacher also was very pleased to see me. When I, so that is something, a great feeling for teachers. I can understand that very well. So thanks for sharing, Ashaji. It was really good, and good luck to your sons who are doing service to the country. Yes. Thank you so much. Blessings are always required. Yeah. That's all we can do these days. Yeah. Okay. Ajay ji, go ahead. वार्तालाप करिए आप. गुड इवनिंग सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग. बहुत दिनों बाद. आप कहीं पे टहल रहे हैं? एक्चुअली केवी साहब, मैं अभी रिसेंटली आई हैव शिफ्टेड टू उत्तराखंड, दैट इज टेरी गढ़वाल में. हाँ, माय सन हैज गॉट ए बेटर जॉब फ्रॉम अहमदाबाद टू this place in the Marriott Hotel. अच्छा. So within 6 months from shifting from Udupi to Ahmedabad, within 6 months, the new achievement I got. And this achievement actually, I must say, hello, are you getting my point? हाँ, सुन रहे हैं. हाँ. तो मेरी तो अचीवमेंट सर यही चीज है कि मैंने बच्चों को अच्छा वेल एजुकेट किया. बड़ा सन मेरा इंजीनियरिंग किया उसने, एंड ही इज चीफ इंजीनियर इन ए गुड मैरिन इंजीनियरिंग कंपनी इन मर्चेंट नेवी. अभी विश्वनाथ जी जैसे कह रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो समवन इज आल्सो ऑफ मैरिन साइड. तो ही बिकम एज ए चीफ इंजीनियर in a gas carrier company. That is so, and younger one, he did his from MI hotel management from your श्रीनगर. तो मतलब दोनों बच्चों को अच्छा पढ़ा दिया. तो आज ये है कि मैं मार्केटिंग में रहा एज ए मार्केटिंग मैनेजर इन स्टोर्स, एंड उस टाइम भी खूब घूमते थे. अब बच्चे घुमा रहे हैं. सही है. बिकॉज ऑफ माई बच्चों की वजह से आज जगह जगह मैं राइट फ्रॉम श्रीनगर टू अब यहाँ गढ़वाल तक पहुंच गए हम. और नॉर्थ इंडिया पूरा ही घूम लिया. मुझे तो अपने अंदर यही लगता है कि दिस इज माय द बिगेस्ट अचीवमेंट. आई यूज्ड टू ट्रेवल एवरीवेयर. मेरे को आई लव ट्रेवलिंग एंड लुकिंग न्यू प्लेसेस. तो भगवान ने बस वही अचीवमेंट, वही आशीर्वाद दे दिया. घूम फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं सब. बस जियो शान से, जियो जीते हैं शान से. और क्या. आई एम स्टेइंग इन ए प्लेस, that is in your कैंपटी फॉल. ये मस्ट बी मेरे बैक साइड में दिख रहा होगा कैंपटी फॉल. ये ऊपर ही मेरा रेजिडेंस है. बहुत बहुत खूबसूरत है बैकग्राउंड. दिस इज माय रेजिडेंस. तो और जस्ट ऑन द हायर साइड ऑफ दिस जो बड़ा दिख रहा है ना, हाँ सब ये बैक साइड में होटल है. वो 10 मिनट का रास्ता है उसका. तो चांस की बात है. सब वही कहते हैं ना कि भगवान अगर कुछ मांग लें तो उस टाइम जब वो सरस्वती जमान पे बैठी होती है तो उसने हमें इतना अच्छा दे दिया कि हमें घर भी अच्छा मिल गया. अभी वी आर इन रेंटेड हाउस, गुड हाउस. बढ़िया बढ़िया, सुन के अच्छा लगा. आप अभी तो फिर इस तरफ को आने का कोई संभावना ज्यादा नहीं है. नहीं, जब भी आइए सर, ऑल आर इनवाइटेड. whenever you come to this place, गढ़वाल साइड, टेढ़ी गढ़वाल या मसूरी. मसूरी is hardly 13 kilometers from my place. चलिए वो भी हो जाएगा. And secondly, my son is in a hotel, so you can get a good accommodation and with a good discount also. Thank you, Ajay ji. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, we have Jayalakshmi ji who would like to share. Go ahead. Hello, Lax sir. Hello, everybody. Hello. Hello. Hi.
So like अरे जया जी को हाँ हाँ अजय जी कैसे हैं आप? मस्त, आपका जगह बहुत अच्छा लग रहा है. About achievements, I don't know what to say. I really think I have not achieved anything. I thought you have achieved too many things. But you know, when like everybody was saying, young age में तो you know everything was coming to me. Like my father was very encouraging. Like my father was serving the Indian Air Force. तो हम लोग सब जगह घूमते थे. No, so my father always used to say, you know, should have a clear heart. हम लोग ये we never used to follow anything like, you know, we had all everything in Indian Air Force is like हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग एक हैं, like there's no caste religion difference or religion difference. So ईद होता था, हम लोग मनाते थे, क्रिसमस होता था, हम लोग you know national festivals हम खूब मजा करते थे. It was good in everything, to be very frank. गाने में, डांस में, पढ़ाई में also I was very good. And sports में, yeah, I remember in relay and all they used to put me last में मुझे डालते थे. And you know relay में भाग के मैं I used to come first. कितने सारे prizes ये वो सब मिलता था. Then achievements के बारे में बोलने से तो सब मुझे मिलता था. And after 10th में my father only applied for Mount Carmel's air hostess because I wanted to be an air hostess. और FTII में पता नहीं न्यूज़पेपर में आ गया वो एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पे डाल दिया, मुझे तीनों में मिल गए. बट यू नो मुझे FTII में आई गॉट स्कॉलरशिप ऑफ 150 रुपीज़ those days. 150 was a big amount. So I said to my father that I'm getting 150, I'll go for that. So he said, don't think about the money. You should, you know, you should enjoy what you're doing. You should like it. If you like it, you go. No, I like because पढ़ाई नहीं करना, कुछ नहीं करना. You can just go and act this and that. No, तो मैं वहाँ गई. So that also I had a very good experience. All great people I met. Everybody, to be very frank, they used to come to our institute and. गुरुदत्त जी का स्कॉलरशिप आत्माराम जी मुझे देते थे. ही टोल्ड मी टू कम टू हिंदी मूवीज ऑल्सो. इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी एक्चुअली. बट आई डिडंट नो द वैल्यू देन, टू बी वेरी फ्रैंक. नाउ मैं अभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है मुझे कुछ वैल्यू ही नहीं था. दे यूज्ड टू जस्ट कॉल मी आओ करके. मैंने बोला हाँ मैं आती हूँ करके. आई केम टू बैंगलोर में आके कन्नड़ा पीपल ने कॉल्ड मी फॉर कन्नड़ा मूवीज. आई डिड मेनी मूवीज. आई गॉट स्टेट अवार्ड, आई गॉट ऑल अवार्ड्स. I was getting good opportunities also, but suddenly I got married. But then, क्योंकि I didn't know the value, I was not focused, I was not ambitious. उसके बाद my married life. So for achievements, I can tell you what I think my achievement is. I had to bring up my children all by myself because my husband was working in Saudi Arabia. And for everything, you know, for the admission का हो या for doctor के पास जाना हो, बच्चे छोटे होते हैं तो you know how they get sick and all that. उसको एक को बीमारी हो गई फिर झट से दूसरे को लग गई, ऐसे you know everything. And of course I had my mother's support. My father passed away by then. Then everything, you know, so I did everything. I forgot about everything. I forgot about my career. I forgot about everything. Only my aim was to bring up my children. So by God's grace, ऐसे मैं करते again I came to the movies because I had to. And by God's grace, you know, I got lot of movies. I got serials. By then serials all had come. And with that, I, you know, मुझे अभी अचीवमेंट क्या लगता है इन दिस पॉइंट, जब भी मैं कहीं जाती हूँ, जब भी मैं कहीं शूटिंग में जाती हूँ तो यू नो वेरी यंग आर्टिस्ट say, they say, Amma, we have seen your movies. We saw the one with Vishnuvardhan. We saw the one with Anant Nag. It was so nice. You look so nice in them. And those children were not even born, you know, 20 years back. When I had re-entered, they had born. But still, they have seen those movies. They remember the dialogues of the movies.
They remember the dialogues of the movies. क्या साड़ी डाला था मैंने. Or even yesterday, 2 days back, I had gone for a shooting. So there they were telling, go violet sari dala tha, with Kalpana I had a dialogue. So every dialogue. So when they say, I really feel, मैंने, because I don't think I have achieved anything. तो जब उन्होंने ये सब वो सब बोलते हैं, तो I feel, yeah, something at least they remember me. कितने साल पहले की बात है ये, and they still remember me. And they tell about all the movies. They say I was looking good and all that. So that's and still people call me for shooting. Still they call me, something or the other keeps coming for me. I'm rejecting actually. I'm rejecting because sometimes they call me to Kundapur. Sometimes Ramnagara, every day going and coming is not possible for me now. Because मैं अभी जाऊंगी सुबह 7 बजे गाड़ी आएगी, then by the time I come back it will become 11. फिर से next day I will have to go at 7 o'clock को गाड़ी आएगी, तो I have to get ready by 5. I have to get up at 5. So अभी नहीं होता. I used to do all that, but अभी नहीं होता. So whatever is whatever is comfortable for me, so I accept that. And my children, they have come up well by grace of God, and they do everything for me now. जो भी चाहिए, they do for me, Lax. So that's very, I feel so happy about it. कहीं में they never talk about, मैं पूछती हूँ ये कितना हुआ, ये पैसा इसको कितना है, इसको कितना है, because they buy कहीं भी जाओ, एयरपोर्ट जाओ, तो my granddaughter will be saying, she'll go to the toy shop, तो मैं भी साथ में जाती हूँ. एयरपोर्ट में how expensive everything is. 4 बार it will be ज़्यादा in airport. So I just see and all that. Daddy, le lo, what you like. So even my granddaughter. तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए. Actually I don't want. तो मुझे नहीं चाहिए. Then when I come back, then she'll say, Daddy, I know you like that thing, you wanted to buy it. No, Baba. मैं बाबा को बोलूँगी, Baba will get you for that. और this recently मैं वहाँ पे गई थी. I had been to Kerala. तो वहाँ पे my granddaughter is very good in swimming and all that swimming. तो उसने बोला, Daddy, you also learn swim, you also swim. तो मैंने मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, I don't have the costume. मैंने तो ऐसे ही बहाना बनाने के लिए. तो she said, no, Daddy, you have to करके मुझे she made her father to get me a swimsuit and all that. मुझे सीखने को बोला, मैंने किया all that. I felt so good. So I feel all that is my achievement. My children are looking after me well by grace of God, and the love of my family. So what I get is very good achievement. और हम लोग में एयरपोर्ट में प्लेन में वापस आ रहे थे, तो she's telling me, she's very small, she's only 8 years. She's telling me, Dadi, good you learn swimming. प्लेन में कहीं गिर जाने से you know to swim now. Yeah, ऐसा सा बोलती है. So all these things, my children, अभी तो I feel whatever happens is for good. So जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. And my children, the main thing I feel achievement for me, I feel my children look after me so well. I hear so many stories, but this is my blessing. So I feel very happy about all these things. And the love of people, wherever I go, they like me and they like whatever I do. They tell me, you do. करके कहीं भी जाऊँ मैं, so all that makes me happy. So that's all, Lax. Thank you, Jayaji. Since we have met and we have seen you perform live. Yeah. So amazing person you have, and very grounded and down to earth, despite being a celebrity. No. That way, so that helps all of us, and that's what we all can learn from someone who is so popular and well known, and still being grounded and connecting with us and talking to us. This itself is a big thing. That's an achievement. Amazing. Thank you, Jayaji. Now, Thank you. Smita Bhargava, would you like to share something? Because
Now, people, I think Ramesh ji has also not spoken, so we would like to listen. हेलो एवरीवन। Hello. अचीवमेंट का तो अचीवमेंट ही अचीवमेंट है। बहुत बढ़िया जी, अच्छा लगा सुन के। बहुत अचीवमेंट है मेरे पास। अ, मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है पीस, लव एंड प्योरिटी। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, क्या बात है यार। तो मतलब बचपन से ही पीस, मतलब एक एक्ट्रेस ने ये बात कही थी कि जो माँ बाप पीस और लव बच्चों को नहीं दे पाते, वो सबसे बड़ा जुर्म करते हैं। तो कुछ मेरे जीवन में भी ऐसा ही था। तो लेकिन अंत में मैंने पीस को बहुत सहेज के रखा हुआ है अपने जीवन में, क्या बात। कि पीस होना जीवन में बहुत जरूरी है। उसके एवज में आप सब कुछ लुटा सकते हैं, वो इतना अनमोल होता है। तो अब कहाँ से शुरू करूं? मतलब बहुत हार्ड जीवन था। Okay. और मतलब मुस्कुराना मैंने अब तब आफ्टर 40, जब मैं 40 साल की हो गई, उसके बाद सीखा। अभी आप 40 की लग रही हैं। नहीं, इस समय मैं 50 प्लस हूँ। 55 मेरा कंप्लीट हो गया है। और अब मतलब बचपन भी तो हार्ड ही था। और मतलब शादी भी हो ही गई थी। और फिर उसके बाद मतलब मैंने अपना ओन बिजनेस किया। और मतलब उस बिजनेस के बारे में, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी, वो बिजनेस मैंने किया। और मतलब ABCD में, मतलब मेरे हस्बैंड जब चले गए तो उसके बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। क्योंकि उस समय नौकरी वोकरी कुछ थी नहीं, उतनी मेरी वो भी नहीं थी। मतलब एजुकेशन भी नहीं थी कि कहीं नौकरी मिल सकती। तो मैं बहुत दूर दूर तक, मतलब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता अकेले टहलती थी। एक बात है स्मिता जी, दिस इज अ वेरी सेफ स्पेस फॉर कम्युनिकेशन। आप दिल खोल के बात कर सकती हैं। जी सर। मैं बोल रहा हूँ कि ये एकदम सेफ स्पेस है कम्युनिकेशन के लिए। आप दिल खोल के बात कर सकती हैं। आप थोड़ा सा हिचकिचा रही हैं तो आप खुल के बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, खुल के बात करें। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरे पास कितने अचीवमेंट है, मैंने क्या किया, और भगवान कैसे कैसे आप लोग को मतलब सहायता मुहैया कराता है। कि मतलब जब आपके जीवन में कोई भी नहीं होता है और एकदम आप शून्य में होते हैं, तो कैसा भगवान हाथ पकड़ के उठाता है, वो मेरे साथ हुआ। मैं मतलब शुरुआत में जब मैं अ, बेहद अकेले पड़ गई थी, सबसे ज्यादा गाली मैं भगवान को दिया करती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन आज के दिन तो मैं टोटली उस पर, यदि वो आ जाए तो मैं तो लौट जाऊं कि तूने मेरे को क्या क्या नहीं दे दिया। मतलब मैं इस काबिल ही नहीं थी कि जो मुझे मिला। क्या बात। तो ये है मेरी अचीवमेंट। और मैंने बहुत मेहनत करी उस काम को करने में। और आज मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं और मैं बहुत सुखी हूँ। और बहुत मतलब बहुत ज्यादा मतलब खुश हूँ मैं। दुनिया की जो बहुत सारे खुशी, 100 खुशी प्राणियों में, उनमें से शायद मेरा नंबर पहला होता होगा। मैं हाँ हाँ, इतनी खुश हूँ। अपने जीवन की सबसे ज्यादा खुश वाले मोमेंट में अब जी रही हूँ। और बहुत मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मतलब आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि मैं उस समय 12th क्लास में थी, मतलब इंटर का एग्जाम फाइनल था, उसके एक दिन पहले मैं 70% बर्न हो गई, कुकर फट गया था। माय गॉड।
लेकिन आज की डेट में मुझे कोई देख के नहीं बता सकता कि मैं 70% जल चुकी हूँ। वाह, तो मैं इसलिए भगवान को बहुत मानती हूँ। आज की डेट में यदि वो ना होता तो मतलब मैं तो ये इस लायक ही नहीं थी, मतलब एक साधारण पर्सन यहाँ तक पहुंचा, उसके लिए भगवान के अलावा किसी का, और वो भी आपके अंदर का भगवान जो जागृत होता है तो विस्फोट होता है। और उस इतनी एनर्जी, इतनी पावर जनरेट होती है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। और मतलब कहते होते हैं ना कि असंभव को संभव बनाने का काम इंसान ही करता है। तो वो विस्फोट होता है आपकी अंदर की जो शक्ति पावर होती है, जिसको आप आत्मा बोलिए या मतलब भगवान बोलिए या समथिंग कुछ भी बोलिए, वो एक शक्ति जो विस्फोट करती है आपके अंदर से, वो बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है आपको, और जो आप चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मिल जाता है उस दौरान। तो मेरे साथ भी वही हुआ। थैंकफुल फॉर गॉड एंड एवरी वन, एवरी मतलब सेल्स ऑफ यूनिवर्स, जिसने मुझे इतना सहयोग दिया यहाँ तक पहुंचने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे दोनों बच्चे आज की डेट में बहुत वेल सेटल्ड हैं, और दोनों मुझे बहुत ज्यादा मतलब क्या बताएं क्या नहीं, मतलब बिन मांगे सब कुछ मुझे मिल जाता है आज की डेट में। अरे वाह, मतलब उन लोग को मेरी आंखों से पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए, वो पहले ही आ जाता था, आ जाता है, ऐसा हो गया। तो काफी स्ट्रगल देखा और हम्म, अचीवमेंट भी। तो मुझे लगता है बिना मतलब संघर्ष के जिंदगी नहीं है। आज की डेट में मैं जहां भी हूँ, मुझे लगता है ये संघर्ष बेहद जरूरी था, और ऐसे दो चार संघर्ष और भी आ जाए तो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि देखो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे उन सारे संघर्षों को पार कराने की अपार शक्ति देगा वो, इतना मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। फिर बहुत कभी बढ़िया, पूरी बहुत। स्टोरी सुनाने का मौका मिला तो हाँ सुनाऊंगी। जी, बिल्कुल मिलेगा आपको, पहले ओपन करने का था आज का दिन। ओके, अच्छा लगा नहीं, सुन के। विल मैं विल खुद के बिना हिचके मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं सबको, लेकिन पता नहीं अंदर कुछ कहीं जुड़ जाती हूँ जाके उन भावनात्मक रूप से कि मैं शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाती हूँ उस समय। तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, मैं चाहती हूँ कि मैं सबको सुनाऊं, लोग समझें कि कैसे कैसे भगवान सहायता करता है। आप बताइए 70% जली उसका तो मतलब आप कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट है उसका। क्यों? क्योंकि वो ये इंटर उसमें एग्जाम में देना था कि भाई जल गई है तो नहीं एग्जाम दे पाएगी, तो ओह, डॉक्टर का लिखा हुआ सर्टिफिकेट है वो। हाँ हाँ तो मतलब और हालांकि ये देखिए गर्दन वर्दन पे अभी जले हुए निशान हैं, और हाथ पैर में भी हैं, लेकिन चेहरा जैसा खिल के आया वैसा मैं आज भी अपने जैसे जले हुए लोगों को देखती हूँ ना, तो मतलब क्या बताऊं, भगवान के चरणों में लेट जाऊंगी, भगवान तूने मेरे को कितना बचाया। 100%, और 100%। कैसे बहुत किस्से हैं जब भगवान ने मुझे इतना बचाया है, इतना बचाया है कि मतलब उस अनंत शक्ति के आगे आप मतलब उससे मैं रूबरू हुई हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि वाकई वो होता है, ओह, जिसने जो आपको ही रक्षा करता है उस समय जब आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। राह में छोड़ के साया भी चला जाता है, दिल की हाँ, आवाज सही भी। बात, सही बहुत बात। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया आपके। रियली समथिंग विच आई विश वी हैड मोर टाइम। आई एम शायद देयर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट टाइम। अच्छा लगा आपकी बात सुन के बहुत। 70% बर्न से बाहर उभर के आना मामूली बात नहीं है। और वो भी प्रशंसनीय। ऐसा रूप लेकर कि मतलब आज भी लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लगते हो, तो इट्स अ मतलब उस समय तब मुझे तुरंत याद आता है कि मैं जल चुकी हूँ। एकदम प्रशंसनीय बात है। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने ऐसे एग्जाम्पल सेट किया है फॉर अदर्स नॉट टू वरी ऑन सच ओकेजन्स। ग्रेट, एक्सलेंट, एक्सलेंट, आई मस्ट से। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर टिल द एंड। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी कौन बचे हैं? रामन जी और सुरेश नंदा जी बचे हैं। सुरेश जी लास्ट टाइम बात किया था शायद आपने।
ठीक है, so then I think the final one रमन सर से हम सुनेंगे वो क्या कहना चाहेंगे before we end the session. सुरेश जी आप कुछ quickly बोलना चाहेंगे? very short report, Yeah. which is nothing to report, no achievements. Very humdrum, very ordinary, eventless, routine, predictable life throughout. Only good thing Bhagavan ke kripa se no major sickness have been pulling on all these days. Thank you very much. Thank you, Raman sir. I think your very presence makes a big difference here. So we definitely we cannot have a session wherein you wouldn't air your views on whatever is going on. Yes, this is in year this time. Okay, thank you so much, and let me also put a word of appreciation for seniors today. Both Archana and Feroz have been of great help, and relentlessly they are following up and ensuring that all the events are happening on an average 2 to 3 events a day is not a joke, and I think the people are lapping it up. A great thing they are doing. Thank you very much, seniors today, and at the helm, Mr. Pradyuman is there, and on Saturdays some very important doctor sessions happen, which are really useful to us, especially when we are all in the evenings of our lives. So बहुत अच्छा लगता है all these programs. For entertainment भी बहुत है, music है, आओ झूमे गाए. Then there is honing of your skills when it comes to singing. Then अंताक्षरी और singing and entertainment के लिए बहुत सारा है, poetry है, बहुत कुछ है. I think we all by now most of you know, and unfortunately not all one can attend, but जो भी हो सकता है please come, have enjoy yourselves and find what appeals to you. उस पे ज़रूर शामिल हो जाए, शरीक हो जाइए. You have everything to gain and nothing to lose. That's what I can say. Thank you all for being so patient